Vishal Chavra Academy once again welcomes you all. In the last class we studied about chapter 2 class 12. हम लोगों ने उसमें एंथर के बारे में और पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था. We'll continue that class 12 part 2 जिसमें आज हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से. ठीक है, तो we'll start with pistil या gynoecium. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि gynoecium मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है. ठीक है, तो विल कंटिन्यू विद दैट. पिस्टिल या gynoecium जो है दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. Please students do not bother about the notes. I will be providing you them in the description box and they are always being provided and I will always provide them. So please try to understand the concept. ठीक है, तो जो पिस्टिल है या जो gynoecium है that represents the female reproductive part of the flower. Gynoecium जो होता है that may consist of the single pistil. This is the gynoecium and ये एक single pistil का हो सकता है. That is known as monocarpellary. जब single pistil हो तो that is known as monocarpellary. ठीक है, या फिर gynoecium जो है that can have more than one pistil. जब more than one pistil हो तो that is known as multicarpellary. When the number of carpels is more than one, जब carpels का नंबर एक से ज़्यादा होता है, the pistil may be syncarpous. पिस्टिल जो होता है वो syncarpous होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे all the carpels are fused together. यहाँ पे carpels जो है जो सारे fused condition में है, so this is known as syncarpous, right? या फिर apocarpous जिसमें कि all the carpels remain the free. When the carpels are free, then it is known as the apocarpous. When they are fused, they are known as the syncarpous. ठीक है, ये छोटी छोटी जो words हैं, key words, ये आपको पता होने चाहिए. Each pistil has three parts: the stigma, the style, the ovary. Right? Stigma is a distal part. Stigma एक ऐसा part है which serves as a landing platform for pollen grains. Pollen grains यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले land करते हैं. ठीक है, It may be branched और feathery. और ये feathery भी हो सकता है और branch भी हो सकता है. Feathery होने का क्या फ़ायदा है कि ये उसको entrap कर सकता है pollen grains को. Right? अच्छा, फिर है stigma is the stigma is a distal part which serves as a platform for the pollen grains. It may be branch or feathery. Style is filamentous part. Style जो एक ऐसा filamentous part है, this is below stigma. ये stigma के नीचे होता है. Ovary is the basal swollen part. ये सबसे नीचे वाला part होता है जिसमें कि ovules present होते हैं, right? And the ovary encloses one or more cavities called locule. इसके अंदर जो cavities होती हैं उनको locule कहा जाता है. These things you have to remember. इनको locule कहा जाता है. Placenta is a tissue formed inside the ovarian cavity that bears the ovules. Megasporangia. जो ovules हैं उनको हम क्या कहते हैं? Megasporangia. The number of ovules in an ovary may be one. Number जो of ovules जो होते हैं ovary में, उनका number vary होता है. They can be one. If it is one, they are in wheat, paddy, mango. Ovule जो है वो एक integumented megasporangium है which first develops as a small projection on the placenta. ये placenta की एक small projection की तरह से develop करता है and remains attached to the placenta. और ये जो ovule है ये placenta से attached होता है by a stalk known as funicle. तो जो ये funicle है वो basically क्या है? एक stalk है. Ovule is attached with the placenta by a stalk that is known as the funicle, right? और जो इनकी जो जंक्शन पॉइंट है, इनको मतलब इनके बीच का जो पार्ट है दैट इज नोन एज हाइलम. उसको हम कैसे करेंगे? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल विद द फ्यूनिकल. ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम. राइट, तो हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक फ्यूनिकल पढ़ा और एक हाइलम पढ़ा. और ओव्यूल का किससे कनेक्शन है? प्लेसेंटा से. और उसके स्टॉक को क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल. ठीक है, आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर है. मैं बहुत आराम से लूँगी ये टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है. मतलब मुश्किल नहीं है इन द सेंस कि वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बस और कुछ नहीं. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस. ये जो न्यूसेलस है, दिस वन,
ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इट इज अ मास ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स, राइट, एंड विच गेट सराउंडेड बाय वन और मोर प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। और जो ये है ये किससे सराउंडेड है, आउटर इंटेगुमेंट से और इनर इंटेगुमेंट से। ये आपको पता है कि आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट जो है वो बनके क्या बनते हैं बाद में, ये सीड कोट्स बनते हैं। जैसे जो ओव्यूल है वो क्या बनता है, सीड, ठीक है, जो ओवरी है वो क्या बनता है, फ्रूट। इसी तरह जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो क्या बनते हैं, सीड कोट्स, राइट, फ्यूचर सीड कोट्स। तो इनकी दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिनको कि एक आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट्स लीव अ स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल एट वन एंड। ये जो इंटेगुमेंट्स हैं इनके यहाँ पे लास्ट में एक देखो ओपनिंग है जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, राइट। इट्स ऑपोजिट एंड इज नोन एज चैल्सा। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट एंटीरियर एंड जो है वो चैल्सा है। बेसिकली ये इन्वर्टेड है, तो ये ऐसे होता है, ये माइक्रोपाइल जो होता है ऊपर होता है और पोलन ट्यूब इसी के अंदर घुसती है और यहाँ पे एग को फ्यूज करती है, दैट आई विल टेल यू लेटर। तो विच रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। मैंने कहा ना चैलिसा जो है दैट इज द बेसल पार्ट, नीचे वाला पार्ट है ओव्यूल का, ये सबसे टॉप वाला पार्ट है ओव्यूल का, राइट। माइक्रोपाइल सर्व्स एज ए पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। जो माइक्रोपाइल है वो एंट्री के लिए यहाँ पर, किसकी एंट्री के लिए, पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए यहाँ पर होता है। An ovule generally has a single embryo sac। एक ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या होता है, a single embryo sac or female gametophyte which develops from a functional megaspore। Embryo sac is situated in the center of the nucellus। Center of nucellus में embryo sac present होता है and cells of nucellus have abundant of reserve food। ये जो cells हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हो nucellus के, इनके पास abundant food होता है for the developing embryo, right। The most common type of the ovule of the flowering plants is anatropous ovule। तो ये जो वाला है most common वो क्या है, anatropous। anatropous का मतलब होता है inverted। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये inverted है, ये ऐसे होता है। So this is the LS of anatropous ovule। अब है megasporogenesis। ये this is very important, ये आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is known as megasporogenesis। देखो ये megaspore mother cell है, ठीक है, और इसमें अब जो ये बनेंगे मेगास्पोर्स, इस पूरी प्रोसेस की बनने की प्रक्रिया को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल एमएमसी। ये देखो ये मेगास्पोर मदर सेल है इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है, ओके। अब ये है कि इट इज अ वेरी लार्ज सेल, ये काफी लार्ज सेल है विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन होती है। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये आपको पूरी प्रोसेस अब बता रही हूँ मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोर मदर सेल है ये, इट विल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, ठीक है, एंड फॉर्म्स दी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। देखो पहले इसके अंदर 2 मियोटिक डिविजन्स होती हैं। पहली मियोसिस से देखो 2 क्रोमोसोम्स बनते हैं, सेकेंड मियोसिस से 4 बनते हैं, राइट। देयर आर n 4 n बने हैं, लेकिन ये जो 3 हैं ये शेड हो जाते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड एक रहता है, दिस n इज लेफ्ट, ठीक है। तो द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली and forms the 4 haploid megaspores, right, which are usually arranged in a longitudinal row, linear tetrad। और ये कैसे अरेंज होते हैं, linear tetrad की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, only the chalical megaspore remains functional while the other 3 degenerate। जो ये 3 हैं ये degenerate हो जाते हैं, जो चैलिसा की साइड का है वो ही सिर्फ सर्वाइव करता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, बाकी डिजेनरेट हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर, जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है n, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या होता है। The process of development of female gametophyte or embryo sac from megaspore is known as megagametogenesis।
तो ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की फीमेल गैमेटोफाइट की या फिर एम्ब्रियोसैक की फ्रॉम द मेगास्पोर, इस मेगास्पोर से, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगागैमेटोजेनेसिस। ठीक है। एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक, और जो मेगास्पोर एक सिंगल मेगास्पोर से इससे जो डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। द न्यूक्लियस ऑफ अ फंक्शनल मेगास्पोर, इसका जो न्यूक्लियस है, दैट अंडरगोज 3 माइटोटिक डिविजन्स। देखिए पहले मियोसिस हुआ था, मियोसिस कितनी बार हुआ था, 2 बार, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो माइटोसिस हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 3 बार, ये प्लीज ध्यान रखना। तो द मेगास्पोर जो है वो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स बना करता है टू फॉर्म दी 8 हैप्लॉइड स्पोर्स। पहली डिवीजन हुई तो 2 बने, फिर 4, फिर 8, माइटोटिक डिवीजन हो रही है, राइट। अब ये जो 8 सेल स्टेज है हमारे पास, इसमें क्या है, विच कंटेन्स 8 न्यूक्लियाई। अब इनको हम अरेंज करते हैं तो ये 3 ऊपर आ जाते हैं, 2 इधर, ठीक है, और 3 इधर। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं लेकिन उनके न्यूक्लियस डिफरेंट रहते हैं। इसको गिना तो 1 जाएगा, तो ये कितने सेल्स माने जाएंगे, 7। तो इसमें क्या आ जाएगा, एम्ब्रियोसैक इज एन ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये जो एम्ब्रियोसैक है, ये जो एम्ब्रियोसैक है, दिस इज एन ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप। क्या कहा जाता है, पॉलीगोनम टाइप। ये छोटे छोटे वर्ड्स प्लीज याद रखना। विच कंटेन्स 8 न्यूक्लियाई। अब इसमें न्यूक्लियस तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं, बट 7 सेल्स, क्योंकि ये फ्यूज्ड है तो इसके लिए सेल्स कितने हैं, 7। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 एग एपरेटस, 3 यहाँ पर, 3 एंटीबॉडल्स यहाँ पे, एंटीबॉडल सेल्स, ठीक है, एंड 1 सेंट्रल सेल। क्योंकि ये फ्यूज्ड है तो इसलिए इसको हमने 1 गिना है, राइट। द सेल्स लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द एग एपरेटस इज लार्जर। अब इन तीनों सेल्स में ये वाला जो सेल है, मिडिल सेल वाला, ये थोड़ा बड़ा होता है, एंड इज कॉल्ड द एग सेल और द oosphere। इसको हम क्या कहते हैं, एग सेल या फिर oosphere, राइट। The 2 cells on its sides are called synergids। जो इसके साइड के 2 सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, synergids, या फिर उनको हेल्पर सेल्स भी कहा जाता है। The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip। इसके यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या थिकनिंग्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फाइलिफॉर्म apparatus, which plays an important role in guiding the path of the pollen tube into the micropyle। मतलब यहाँ से जब एंट्री होती है, माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, तो ये जो ये फिलीफॉर्म है सेल्स, इनका मेन काम क्या होता है, उसको गाइड करना यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स ऑफ द चैलिज़ल एंड जनरली डीजेनरेट सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के इमीडिएटली बाद वो शेड हो जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। एंटीबॉडल्स जो है, एंटीबॉडल सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, राइट। The central cell is the largest cell of the embryo sac with 2 polar nuclei, ठीक है, ये polar nuclei हैं, which fuse before the fertilization। ये fertilization से पहले ही fuse हो जाते हैं, as I told you, and form a single diploid nucleus called secondary nucleus। तो इसको हम क्या कहते हैं, secondary nucleus, right। ये पहले ही fuse हो जाते हैं fertilization से पहले, और इनको ये fuse कर जाते हैं, तो ये 2n हम लोग इसको denote करते हैं। अच्छा, इसमें और भी चीज़ थी कि आपको वो बताना था, अच्छा वो शायद आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर कि 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें से जो एक गैमीट है वो ये पोलर न्यूक्लियाई से, 2n पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर 3n बनाता है, राइट। तो इसको, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुई है, ठीक है ना, 3n हुई है ना, तो इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और इसको PEN कहा जाता है, राइट। उसके बाद यह है कि जो एक मेल गैमीट है वो इस एग सेल को यहाँ से घुसा ना, फिलीफॉर्म ने उसकी हेल्प करी, यहाँ पे जाके फ्यूज करता है उसको, और सिंगेमी होती है, जाइगोट बनता है जो कि 2n होता है।
क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। अब आप आंसर दे पाओगे कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट? और ये भी बता पाओगे कि यहाँ पे ये इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एज फार एज द डायग्रामेटिक पार्ट जो था दैट इज ओवर नाउ। अब सिर्फ थियोरेटिकल है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे, अब हमने बता दिया ना कि जाइगोट बन गया है, ठीक है? अब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे और फिर जर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो दैट इज क्वाइट थियोरेटिकल एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द नोट्स। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। Transfer of pollen grains from anther to stigmatic surface of the flower is known as the pollination. Pollen grains जब आकर stigmatic end में आते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर होता है pollen grains का और stigmatic end में आते हैं, तो this whole process is known as pollination. An external agent like wind, water, animal, etc. is necessary for pollination, as I have told you in the earlier class also, कि उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है पॉलिनेशन के ट्रांसफर के लिए, राइट? जैसे मैंने बताया, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एन एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड, इंसेक्ट, बर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? सेल्फ पॉलिनेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है ऑटोगेमी, इसका मतलब फ्लावर ही सेम है, ये होती है पी में, व्हीट में और राइस में, ठीक है? और फिर आती है जिटोनोगेमी, वो डिफरेंट फ्लावर्स हैं बट प्लांट सेम है, ठीक है? डिफरेंट फ्लावर्स बट द प्लांट इज सेम। इसका एग्जाम्पल आ जाता है, कुकुरबिट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ऑटोगेमी आती है, एक जिटोनोगेमी आती है। ऑटोगेमी मतलब प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, राइट? जैसे कि पी हो गया, पीट हो गया, राइस हो गया। और जिटोनोगेमी में आ जाती है फ्लावर्स डिफरेंट हैं बट द प्लांट इज सेम, ये कुकुरबिट्स में होता है, ठीक है? अच्छा, फिर है ऑटोगेमी को अगर हम ढंग से इलेबोरेट करें, in this process the pollen grains from the anthers of the flower are deposited on the stigma of the same flower, ठीक है? मतलब एक ही फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ स्टिग्मा पे जाएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। Thus autogamy is the pollination of a flower by its own pollen grains, अपने ही pollen grain से वो फर्टिलाइज हो रहा है। In a normal flower which opens and exposes the anthers and stigma complete, autogamy is rather rare. In such flowers, autogamy requires synchrony in the pollen release and stigma respectively, and the anthers and stigma should lie close to each other so that the self pollination can occur. मतलब autogamy में it is very natural that both the reproductive parts should be quite close to each other so that the fertilization takes place, right? Some plants like Viola, Oxalis and Commelina produce two types of flowers. ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ प्लांट्स जैसे कि वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ठीक है? ये जो है इनके पास दो टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, एक आते हैं चैस्मोगेमस फ्लावर्स और दूसरे आते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। Chasmogamous flowers are similar to the flowers of other species. ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे flowers of other species with exposed anthers and stigma. जो इनके stigma होते हैं वो exposed होते हैं, ठीक है? और anthers भी exposed होते हैं, right? और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं they do not open at all. जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं they do not open at all, ठीक है? और इसके फ्लावर्स में एंथर्स और स्टिग्मा काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। क्यों क्लोज होते हैं? बिकॉज दे आर इन द सेम फ्लावर, ठीक है? तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं दे आर ऑटोगेमस, एज देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, एक ही फ्लावर है तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन है, इसलिए उसको ऑटोगेमी में गिना जाता है। बट क्लिस्टोगेमी इज नॉट सो एडवांटेजेस। क्यों नहीं होती एडवांटेजेस? देखिए, जब एक ही फ्लावर होगा, उसी के पॉलन ग्रेन्स होंगे, ऑटोगेमी होगी तो ऑब्वियसली जेनेटिक वेरिएशन भी कम होगी, सो इट इज़ नॉट सो एडवांटेजेस, राइट?
जेनेटिक वेरिएशन कम होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी नॉट सो एडवांटेजेस। फिर है जिटोनोगेमी। इन दिस प्रोसेस pollen grains from the anthers of one flower are deposited on the stigma of the another flower born on the same plant। अब मतलब देखा जाए तो जिटोनोगेमी भी क्या है, एक टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट तो सेम है, फ्लावर्स डिफरेंट है, ठीक है। इतनी जेनेटिक वेरिएशन तो इसमें भी नहीं होगी, बट फिर भी इट विल बी बेटर देन ऑटोगेमी, ठीक है। बट दे रिक्वायर अ पॉलिनेटिंग एजेंट, और उनको पॉलिनेटिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन में समझ आ गया कि एक होती है ऑटोगेमी और एक होती है जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी वो होती है जिसमें फ्लावर ही सेम होता है, और जिटोनोगेमी वो होती है जिसमें फ्लावर्स अलग अलग होते हैं बट प्लांट एक होता है, ठीक है। और हमें पता चल गया कि चेस्मोगेमस क्या होता है और क्लिस्टोगेमस क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू होता है और बायोटिक एजेंसीज के थ्रू होता है। जो एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू होता है वो होता है एनिमोफाइली, ठीक है, और हाइड्रोफाइली। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एनिमोफाइली मतलब यहाँ पे जो एबायोटिक एजेंट है वो विंड है, और हाइड्रोफाइली मतलब यहाँ पे जो एबायोटिक एजेंट है, जो मीडियम है पास ट्रांसफर का, वो क्या है, पानी, ठीक है। बायोटिक एजेंसीज में आ जाते हैं एंटोमोफाइली। एंटोमोफाइली पढ़ी हुई एंटोमोलॉजी होती है, इट्स अ स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। तो जो मोफाइली है दैट मीन्स द एजेंट इज इंसेक्ट्स। फिर आती है ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली मीन्स द स्टडी ऑफ द बर्ड्स को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्निथोफाइली मीन्स द मीडियम इज बर्ड्स है। फिर है चायरोटेरोफाइली। चायरोटेरो मतलब बैट्स के थ्रू, आजकल वैसे भी बैट्स ने बहुत आतंक मचाया हुआ है कोरोना वायरस के डेज में। और फिर है मेलैकोफाइली जो कि स्नेल्स के थ्रू से होती है, स्नेल्स के थ्रू होती है, सॉरी, मेलैकोफाइली। क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक हैं, तो बायोटिक एजेंट्स हैं। तो ये आ गए हमारे एंटोमोफाइली, ऑर्निथोफाइली, चायरोटेरोफाइली एंड मेलैकोफाइली, राइट। ये इनके डेफिनेशंस एंड ये जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनसे आपको फेमिलियर होना है। तो जो एबायोटिक एजेंट्स हैं उसमें इट इंक्लूड्स विंड एंड वाटर। विंड पॉलिनेशन, इट इज मोर कॉमन मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन अकम्पनीड थ्रू द विंड। जो विंड के थ्रू हो रही है तो ऑब्वियसली विंड पॉलिनेशन है। कॉमन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, अब ये है कि विच ऑफ द प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड एंड विच आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, ये इसके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे इसमें आ जाएगा कोकोनट पाम आ जाएगा, डेट पाम आ जाएगा, मेज आ जाएगा और ग्रासेस आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल गिवन इन द नोट्स, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम देयर, बट समझ लो कि इसमें कोकोनट पाम आ जाएगा, डेट पाम आ जाएगा, मेज आ जाएगा और ग्रासेस आ जाएंगी, ठीक है। अब यह है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफाइलस फ्लावर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, क्या उनकी स्पेशल फीचर्स होते हैं। पहला, वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं, मतलब कोई भी सुंदरता वाली चीज़ नहीं है उनमें, ठीक है। फिर है पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर्स। पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि विंड से पॉलिनेशन होती है तो डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है, लाइट भी होंगे और नॉन स्टिकी भी होंगे, तभी विंड पॉलिनेटेड है। और स्टिग्मा इज हेयरी एंड फेदरी, और स्टिग्मा ऐसा है जो कि ग्रास्प कर सके, बिल्कुल पॉलन ग्रेन्स को पकड़ सके, टू कैच द एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स, राइट। उसके बाद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड। हाइड्रोफाइली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे मेन क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है और थ्रू वाटर होता है। इट अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये कहाँ होती है, एक्वेटिक प्लांट्स में, सच एज हाइड्रिला और वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वेलिस्नेरिया, विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर एंड मरीन सी ग्रासेस, ठीक है, और जो कहाँ पे फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मरीन वाटर में भी होते हैं। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द पॉलन ग्रेन्स आर, जो फीमेल है फ्लावर्स आर रिलीज ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। मतलब क्या है कि वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो कैसे सर्फेस पे रीच करती है, बाय इट्स लॉन्ग स्टॉक, ठीक है। आपको पता है कि ये इसकी लॉन्ग स्टॉक होती है और ये उससे सर्फेस ऑफ वाटर में रीच करती है।
and the pollen grains or the male flowers are released on the surface of water. इसी तरह से जो मेल फ्लावर्स हैं वो भी surface of water में रिलीज होते हैं, ठीक है. In majority of aquatic plants like water hyacinth and water lily, flowers emerge above the water level. Surface of water के ऊपर ये emerge होते हैं, पानी की surface के ऊपर होते हैं. And are pollinated by insect or wind as in the most of the land plants. और ये किससे pollinated होते हैं? या तो insect से या wind से. तो इसका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वाटर प्लांट्स हैं तो वो वाटर के थ्रू ही उनकी पॉलिनेशन होगी. विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकती है, बिकॉज उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट. इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर. सी ग्रासेस में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो पानी के अंदर डूबे होते हैं. एंड द पॉलन ग्रेन्स विच आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक आर रिलीज इनसाइड द वाटर. और जो रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल के पास जाते हैं, ठीक है. पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर जाते हैं ये, जहाँ पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं. सम ऑफ दीज रीच स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन. और कुछ इनमें से जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं स्टिग्मा को टच करने में और पॉलिनेशन हो जाती है, राइट. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. जो हाइड्रोफेलस फ्लावर्स होते हैं, पहला फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, नॉट वेरी कलरफुल नहीं होते, एंड विदाउट नेक्टर, उनमें नेक्टर नहीं होता, ठीक है. Pollen grains are light, pollen grains light हैं, and protected from wetting by a mucilaginous covering. क्योंकि उनको पानी में जाना होता है तो उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको mucilaginous coating कहते हैं, और ये किस में होती है, pollen grains में. बारिश आती है तो हम अम्ब्रेला लेते हैं, ठीक है, या फिर वो पहनते हैं जो कोट होता है, रेन कोट होता है. तो इसी तरह से उनके ऊपर भी एक कोटिंग होती है जिसको म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहा जाता है, वो जो उनको वाटर से प्रोटेक्टेड रखती है और फर्टिलाइजेशन होने देती है, राइट. आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू लाइक द क्लास, एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल द नोट्स विद डायग्राम्स आर गिवन देयर. There is nothing to worry about कि बोर्ड में से क्या रह गया और क्या नहीं रहा, ठीक है. And in the next class we'll do rest of the topics from this chapter. Please do not forget to like, share and subscribe, and please press the bell icon for the further notifications. Thank you so much. Thank you.